ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸੱਚ में ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿੰਨੇ ਅਚੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਔਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚ में ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੂੰ ਸੱਚ में ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਲੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਯੂਬ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚ में ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਘਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਆ ਲਹੂ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਾੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਭਰ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹ ਇਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਮਹਿਕਣ, ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਤਰਸ, ਭਾਈ ਯੂਨਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਪੂਨਮ, ਸਿਸਟਰ ਐਸਤਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸੱਚ में ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਗੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਵਚਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਏਂਜਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਦੂਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੂਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬੀਮੇਲੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬੀਮੇਲੇਕ ਜਾ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹमें दिया गया है किसने विश्वास किया। यशायाह 53 ਉਹਦੀ 21। किसने विश्वास किया। जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है अब्राहम विश्वासियों का पिता था। अब्राहम विश्वासियों का पिता था। सबसे पहला जो विश्वासी था वो खुदावंद था, और वही विश्वास अब्राहम में पाया गया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता से कि वही विश्वास आज आप में भी पाया जाए, और मैं विश्वास करता हूँ वो पाया जाता है। अब्राहम ने चिंता नहीं की। जब खुदावन ने उसे अपने घर से निकाला तो अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। अब्राहम ने सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगा, कैसे जीऊँगा। क्या वो खुदा जो अब्राहम का खुदा था, धरती आकाश बनाने वाला था, अब्राहम को सब कुछ प्रोवाइड करा देता। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरी माताओं, ये संदेश, ये मैसेज आपके पास इसलिए आया है क्योंकि ये आपसे व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहता है। आमीन। अगर ये संदेश, ये मैसेज आपसे व्यक्तिगत व्यवहार कर रहा है तो ये आपको अलहदा करेगा, ये आपको उस भीड़ में नहीं रहने देगा जो संसार की भीड़ है, संसारिक विचारिक लोग हैं, सांसारिक अभिलाषाओं के लोग हैं। वो उन चीज़ों से आपको अलहदा करेगा। और नबी ने कहा, खुदा के नबी ने कहा कि खुदा अलहदगी का खुदा है। आमीन। इसलिए हर एक संसार की वो वस्तु जिसमें कड़वी जड़ पाई जाती है, उन वस्तुओं से दूर रहें। अगर आपके बीच में आपका भाई या आपकी कोई बहन ऐसी पाई जाती है तो उसके लिए दुआ करें। आमीन। क्योंकि आप किसी को सही करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ख़राब होता जाएगा। जब खुदा उसको सही करेगा तो सिद्ध मार्ग पे लेके आएगा। आमीन। और यशायाह कहता है कि जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। आज यशायाह आपसे पूछ रहा है कि किसने विश्वास किया। जो सुसमाचार आज हमें सौंपा गया, किसने विश्वास किया। क्या आप हाथ उठा सकते हैं। मैंने विश्वास किया है। आमीन। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। मेरे प्रियो, वो खुदावंद जिसने अपना जलाल मुझ पर और आप पर प्रकट किया है, अपना वचन का मुकाशवा हम पर खोला है। उसने किसी संस्थाओं पर नहीं खोला, किसी डिनोमिनेशन पर नहीं खोला, और उसने अपना मुकाशवा अपने लोगों पर खोला और अपने लोगों में रखा। आज सभी संस्थाएं जो हैं वो उपासना कर रहे हैं, पर खुदा अपनी उपासना में सच्चे लोगों को लेके आता है।
और खुदावन ने कहा कि तुम नहीं जानते तुम किसकी उपासना करते हो, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं किसकी उपासना करता हूँ। आमीन। आज तकरीबन डिनोमिनेशन नहीं जानते, संस्थाएं नहीं जानती कि वो किसकी उपासना कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। आमीन। यहोवा का भुजबल किस पर प्रगट हुआ? खुदा का जलाल, उसका भुजबल किस पर प्रगट हुआ? मेरे प्रियो, आज खुदावन का भुजबल आप पे प्रगट हुआ है। आप चुने हुए हैं, आप ठहराए हुए हैं। शैतान आपको कितनी भी निराशा दे कि तू ये नहीं कर सकता, तू चुना हुआ नहीं है, पर आप चुने हुए हैं। खुदा ने आपको चुना है, आप खुदा के प्रिय हैं। कोई भी पिता अपने बच्चों से नफरत नहीं करता। खुदावन आपसे नफरत नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है। वो नफरत आपके गुनाहों से करता है, आपसे नहीं करता। आमीन। और इसलिए वो कहता है कि संसार में ये गुनाहों को छोड़कर हम उस खुदा से मेल मिलाप कर लें, नहीं तो ये गुनाह आपके और खुदा के बीच में दीवार बनकर रहेंगे, यहाँ भी और अगले जीवन में भी। और मैं विश्वास करता हूँ ये मुकाशवा आप पर खुदा ने खोला है कि आप खुदा की पवित्र पर्चा हैं। खुदा ने कुछ लोगों पर अपना भुजबल प्रकट किया है, अपना जलाल प्रकट किया है, और बहुत से लोग हैं जो आज अभी भी संदेश को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आज संदेश में अंधे हैं। बहुत से लोग हैं जो संदेश में लदीकिया काल में पाए जाते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके जलाल का धन्यवाद करते हैं कि उस अपने दाहिने हाथ से अपने इज़राइल का, अपने पुत्र का उद्धार किया है। आमीन। खुदा के नाम की महिमा हो। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि में फूट निकले। उनकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। आमीन। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते। हालेलुया। आप जानते हैं ये खुदाबंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी जब वो पृथ्वी पर आया। आमीन। उसकी कोई भी ऐसी खूबी नहीं थी जिसकी वजह से आप उसे वोट देते, उसकी उपासना करते। पर जो खूबी थी उसके अंदर, जो गुण थे, उसने अपने गुण प्रकट नहीं किए, उसने खुदावंद के गुण लोगों के सामने प्रकट किए। आमीन। उन्हें बताया कि जो मेरा पिता है वो सामर्थी है, वो दया में धनी है, वो अनुग्रहकारी है, वो चंगा करने वाला है, वो भेदों को बताने वाला है, वो जाफनत फानिया है, तो यहोवा राफा है, यहोवा निस्सी है, वो आपको चंगाई देता है। आमीन। क्योंकि खुदावन ने आपको इसलिए बुलाया है। और मैं विश्वास करता हूँ हमारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं जित आज उपवास जिन्होंने रखा है, खुदावन आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आप खुदा के राज्य को बना रहे हैं। आप अपना आत्मिक धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आत्मिक धन आपका इकट्ठा होगा तो आत्मिक धन ही आपको आपकी चंगाई देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु में आप अपना आत्मिक धन इकट्ठा करें। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे देखते, उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ। वो तुच्छ समझा गया, तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ समझा गया। आमीन। पर था कौन? सारी सृष्टि का मालिक, सभी का दाता, वो अनुग्रहकारी खुदा था। आमीन। वो
अपनी महिमा को तज कर आया था। उसे लाने वाला कोई इंसान नहीं था। आमीन। वो अपनी महिमा में अपने लोगों के पास आया है। हालेलुया। और वो लोगों के द्वारा तुच्छ गिना गया। सारे बीच में जिन लोगों को उसका आदर करना चाहिए था, उन लोगों ने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो सामर्थी खुदा था। उन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह ने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहते तो सभी को कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए हमेशा आप खुदा के वचन को पूरा करें। पवित्र आत्मा आप इसलिए मांगें ताकि आप वचन को पूरा कर सकें। पवित्र आत्मा आप इसलिए मांगिए ताकि आपके बीच में जो रोगी हैं वो चंगे हो सकें। पवित्र आत्मा इसलिए मांगिए कि खुदा वचन का मुकाशवा आप पर खोल सके। पवित्र आत्मा इसलिए मांगिए ताकि पवित्र आत्मा सच्चे इंसान के पास आपको पहुंचा सके, क्योंकि आज नकल करने वाले संसार में बहुत हैं और दावा भरते हैं कि वो सच्चे हैं, और उनके पास क्या है? नकल है। आमीन। पर खुदा ने आपको सिद्ध इच्छा से बुलाया है, आपसे प्रेम किया है, आपके लिए उसने अपनी जान को दिया है, अपना कतरा कतरा उसने बहा दिया। कभी आपने सोचा है उसने कितना प्रेम किया आपसे? आमीन। वो सच में वो इतना प्यार करता है। कोई भी इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है, इसी तरह से वो हमारा खुदा था। वो हमारे लिए आया। आमीन। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। जैसे नबी ने कहा, खुदा के नबी ने कहा कि लोग उस समय समझ रहे थे कि खुदावन रथों पर आएगा, बड़ी भीड़ दूतों की उसके आगे पीछे चलती आएगी, और वो इतने सिंपल तरीके से आया कि लोग उसे जानने से चूक गए। आमीन। पर जब भी खुदावन आता है तब उसके लोग उसका स्वागत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने उस समय उस घड़ी के बारे में उन लोगों को बताया हुआ है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है वो सिखाए हुए हैं। समय पे उनको सब कुछ बता दिया जाएगा। हालेलुया। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम देखते, ना उसका कोई रूप ही है हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसमें कुछ भी चाहत नहीं थी कि उसको चाहा जाता। आमीन। क्योंकि आज सारी डिनोमिनेशन किस चीज़ से प्यार करती हैं? उसके गुणों से। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आपके अंदर गुण अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। उसके अंदर बाहरी कोई सुंदरता नहीं थी। हालेलुया। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था। वह क्या था? दुखी पुरुष, दुख सुख भोगी इंसान था। जैसे हम हैं वैसे ही हमारा खुदा भी था। उसने भी दुख सुख पृथ्वी पर भोगा, हमारे समान वो पृथ्वी पर रहा। आमीन। खुदावन के नाम की महिमा हो। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता तो कई पहाड़ों को हटाकर इधर रख देता, उधर रख देता, अपनी शक्तियाँ दिखाता लोगों को विश्वास करने के लिए। पर असल स्रोत ये नहीं था खुदा का। असल स्रोत जो था खुदा का, वो ये था कि वो अपनी महिमा कराए लोगों से। आमीन। और वो स्व इच्छा से खुदा की महिमा करें। हालेलुया। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी।
हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। यशायाह कह रहा है, सोचिए यशायाह कितना परफेक्ट नबी था। हम क्या हैं यशायाह के आगे? कुछ भी नहीं है। यशायाह सबसे महान नबी है। ईमान। और यशायाह कह रहा है कि हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमें इस संदेश का मूल्य पता होना चाहिए। आज इस सेवकाइयों का मूल्य पता होना चाहिए। हर एक बहन भाई के अंदर जो आत्मा है उसका मूल्य पता होना चाहिए। ये कितना पवित्र वचन है, कितना होली वचन है। हालेलुया। निश्चय हमारे अपराधों रोगों को सह लिया और हमारे दुख को उठा लिया। मेरे प्रियो, कॉन्ग्रेचुलेशन। उस खुदावन ने आपके दुखों को, आपके रोगों को उठा लिया है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि आपके रोग उसने उठा लिए हैं? आप दुआ करें, खुदा से घुटने टेकें। हालेलुया। आप खुदा की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, कोई रोग आपके पास नहीं आ सकता। आमीन। क्योंकि कोई भी रोग जो होता है वो एक पाप की निशानी होती है। हालेलुया। और कहीं ना कहीं हम खुदा के आगे गिर पड़ते हैं जब ये बीमारियां हमें पकड़ती हैं। अगर आपके अंदर कोई बीमारी पाई जाती है तो खुदा उसे चंगा करने के लिए वचनबद्ध है। हालेलुया। आप उस गुनाह को मानिए जिस गुनाह के द्वारा ये बीमारी आपके अंदर आई है। ये आपको पता होगी और खुदा आपको रियलाइज़ कराएगा, आप ये बीमारी मेरे ऊपर क्यों आई। हालेलुया। आज संसार में देखते हैं कि बहुत तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। कहीं बीपी घट जाता है, कहीं शुगर, कहीं बुखार, कैंसर, ये थायराइड, है ना। ये तमाम बीमारियां जो हैं, ये बीमारियां आज लोगों में क्यों हैं? क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है पृथ्वी पर। लोग अनाज्ञाकारी हैं, खुदा के विरुद्ध बोलने वाले हैं। हालेलुया। पर जो खुदा के लोग होते हैं, खुदा उनको संभाल के रखता है। हालेलुया। और खुदा जब भी अपने बच्चों पर अपनी दया का हाथ बढ़ाता है तब वो छुटकारा पाते हैं। आज वो दया का हाथ आप पर भी है। हालेलुया। निश्चय हमारे रोगों को सह लिया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और यशायाह कह रहा है, हमने क्या समझा? कि वो खुदा का मारा कूटा हुआ है। मेरे प्रियो, उस खुदा को याद करें हमेशा। वो आपकी ले की कुर्बानी है। हालेलुया। वो आपके शरीर के लिए, आपकी शारीरिक चंगाई के लिए है। आप इस हिस्से को ना छोड़ें। हालेलुया। और जो वचन के रूप में मारा गया, वो वचन का लेला है जो आपकी आत्मा को बचाने के लिए है। आमीन। आप 3 में सिद्ध होते हैं। हालेलुया। पहले अपने आप को मारना पड़ेगा, फिर आपके लिए खुदा मरा है, फिर आपके लिए आपकी आत्मा के लिए खुदा का वचन मारा गया। आमीन। हालेलुया। तो भी हमने उसको खुदा का मारा और कूटा हुआ समझा। भी खुदा का मारा कूटा हुआ था। नहीं मेरे प्रियो, वो आपके लिए कूटा गया, आपके लिए मारा गया, आपके लिए उसे सलाखों के पीछे डाला गया, आपके पीछे उसके कोड़े लगाए गए, आपके आपके लिए उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियो, कितना महान है। सोचें कभी कि उसने आपके लिए क्या सहा है। अपने हाथों में उसने कीलों को ठुका लिया। सोचें वो उसने कितना प्यार किया। हमारे कहीं किसी की डेथ हो जाए तो हम रोने लगते हैं। हमारे लिए हमारा ये भाई मर गया, हमारी नानी मर गई, हमारी दादी मर गई। सोचिए वो खुदा आपके लिए मरा जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।
उससे पहले उसने आपके लिए क्रॉस पर जान दे दी। आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए। जब आप घुटने टेकते हैं आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए कि उसने आपके लिए जान दी है। जब आप प्रचार करते हैं तो आपके अंदर खुशी होनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए जी उठा है। हालेलुया। उसने आपके अपराधों को हटा दिया है। जो लाल रंग के थे अब वो सफ़ेद हो चुके हैं। हालेलुया। उस खुदावंद के वसीले हम चंगे हुए हैं और आप चंगाई को हासिल कर चुके हैं। वो धर्मी है आपको शिफा देने के लिए। इससे पहले वो आपको चंगाई दे, आपको शिफा दे, आप संसार से, संसार की वस्तुओं से हट जाएं। आप हाइब्रिड रहकर खुदा को खुश नहीं कर सकते। आप उस संसार से हट जाएं, संसार की बुरी वस्तुओं से हट जाएं। हालेलुया। और वो खुदा आपको छू कर चंगा करेगा, आपको संभालेगा। वो आपका खुदा है। हालेलुया। खुदा का कूटा, मारा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा गया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। मेरे प्रियो, वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया। हालेलुया। आज हम उसके पुत्र हैं, उसके लहू के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जैसे एक बच्चा होता है, उसे पता होता है मेरा पिता क्या है, और पिता को पता होता है मेरा बच्चा क्या है। आज वो खुदावन हमारा पिता है। हालेलुया। वो खुदावन हमारा बाप है, हम उसके बालक हैं। उसकी महिमा के लिए आज हम उस फिर खड़े हुए हैं। उसकी तारीफ़ के लिए हम खड़े हुए हैं, उसकी शान के लिए हम खड़े हुए हैं। खुदावन की महिमा के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए, उसकी महिमा के लिए हम तारीफ़ में यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हालेलुया। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। खुदावन की तारीफ हो। हालेलुया। अगर आप उसकी कुर्बानी को याद करते हैं, वो लहू अपने जीवन में लेते हैं, तो आप चंगाई प्राप्त करेंगे, आप रोगों से मुक्त होंगे, आप भ्रष्ट आत्माओं से मुक्त होंगे, आप आज़ाद होंगे। अगर आप उपवास सहित खुदा के पास आते हैं, हालेलुया, उसकी प्रार्थना में, प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करें, उसकी हजूरी में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि ये संसार एक अधलोक है, यहाँ पे दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग हैं, प्रेत आत्माओं से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। कोई भी आपसे कोई भी बात करता है, उसको जांचें वो खुदा की तरफ से है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से है फिर ग्रहण करें, नहीं तो उस बातों को छोड़ दें। हालेलुया। जो आपको खुदा से अलग करेगी। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कारण उस पर ताड़ना हुई, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना की गई। उस खुदाबंद यीशु मसीह के ताड़ना जो हुई हमारी शांति के लिए हुई है। हालेलुया। ताकि हम शांति हासिल करें, हम खुदा की महिमा कर सकें। हालेलुया। और वो खुदा हमारे लिए ही कुर्बान हो गया। उसने चिंता नहीं की। आज संसार के लोग चिंता करते हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा काम, मेरे दोस्त। हालेलुया। पर हमारे खुदावंद ने किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं की। आमीन। उसने अपनी जान दे दी क्योंकि उसको पता था एक मरेगा और कई जीवित होंगे। हालेलुया। आज हम क्या हैं? हम स्वार्थी हैं। आज हम अपने कामों को करके उसके बाद खुदा को समय देते हैं। और वचन कहता है समय और असमय भी
हमेशा तैयार रहें खुदा के लिए। खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। आपकी दुआ हमेशा यही हो कि प्रभु, सुबह शाम आप जब दुआ करते हैं, आप अपनी चंगाई को पाने के लिए हमेशा दुआ करें, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। तेरे लहू बहाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा जो मुझे कंट्रोल करती है, खुदावन तूने उसे कंट्रोल करने के लिए कांटों का ताज पहना है। हालेलुया। उस प्रेत आत्मा को कंट्रोल करें जो आपको नेगेटिव विचार देती है। हालेलुया। अगर कोई इंसान, कोई बहन भाई ये बात कहता है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं, बुरी विचार आते हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद ने इसलिए अपनी जान दी, इसलिए कांटों का ताज पहना है। आप झूठे हैं क्योंकि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। अगर आप पवित्र आत्मा पाएंगे तो कोई भी विचार, आप अपने विचारों के अंदर ही उसे किल करेंगे। हालेलुया। वो आपकी ज़बान, आपके विचार, आपकी सोचों तक नहीं आ सकता, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव विचार है जो नेगेटिव विचार को मार देता है, आपकी देह तक नहीं पहुंचने देता। हालेलुया। और ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप एक डोलू हैं और शैतान आपको घुमाएगा। जब भी घुमा सकता है वो आपको, शैतान के आगे घुमाएगा, संसार के आगे घुमाएगा। हालेलुया। और जो अभिलाषी होंगे उन्हें तो आनंद आएगा संसार में जाके, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। आमीन। पर जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो संसार से आनंदित नहीं होता, और वो खुदा की बातों से आनंदित होता है, खुदा के लोगों से आनंदित होता है, वो खुदा के लोगों में खुश रहता है। हालेलुया। क्योंकि संसार में जब संसार में हम रहते हैं तो कुछ ऐसे रिश्ते नाते होते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम उनसे संबंध रखें, पर जब हम वचन को नीचा करके उन संबंधों को रखते हैं तो हम खुदा का अनादर करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सबसे पहले खुदा को आगे रखें, क्योंकि वो ही उत्तम है, उसी के द्वारा सब रिश्ते नाते हैं। हालेलुया। उसके बाद आप रिश्तों को निभाएं, अपने रिश्तेदारियों को निभाएं। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। आइए हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए, उसी के कोड़े चंगे हुए हैं। आमीन। आप हमेशा दुआ करें भाइयों, मेरी बहनों, जो भी शुगर से, बीपी से ग्रसित हैं, खुदा उनको शिफा देगा। अविश्वास करें कि आप चंगे होने जा रहे हैं, खुदा आपको चंगा करने जा रहा है। आप घुटने टेक के उपवास करिए, हमेशा आप चैलेंज करें शैतान को, मैं चंगा हूँ। शैतान अपना शुगर उठा, अपनी बीमारी ये उठा, अपना ये बीमारी उठा, मैं बिल्कुल अब खुदा के आगे रोएं, अब खुदा से कहें, खुदा तूने मेरे लिए जान दी है, तू सच्चा खुदा है। दुआ करें। कहीं ना कहीं आपकी नबी ने कहा आपकी चंगाई आपके साथ चलती फिरती है, आप उसे रोक कर रखते हैं। और बाइबल कहती है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। इसलिए आप अपनी चंगाई को रिसीव करना चाहते हैं तो आपको संसार से अलग होना होगा, नेगेटिव विचारों से अलग होना होगा। जो आपके नेगेटिव विचार आपके माइंड में चलते हैं, उन विचारों को विचारों से ख़त्म करना होगा। हालेलुया। उसके बाद संसार दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमीन। और जो भी आपके बारे में गलत कहता है उसके गए खुदा आपको ब्लेस करे। जो भी आपके लिए आपको निराश करता है, आप कहें खुदा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। जब आपके अंदर सैक्रिफाइस स्टार्ट हो जाएगा तो आप आत्मा से पूर्ण होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा काम दया से करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम माफ़ी पर करता है। जब आपके विचारों में माफ़ी चलना स्टार्ट हो जाती है तो पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट कर देता है।
हालेलुया। और ये खुदा के साइन है कि आपको वो चंगा करेगा। अपने गुनाहों को मानिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो दुनिया में हो। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। जीते इंसान के आगे झुकना गुनाह नहीं है, जिंदा इंसान के आगे झुकना गुनाह नहीं है, मुर्दा के आगे झुकना गुनाह है। इसलिए जो जीवते हैं, आप उनके आगे झुक भी जाएंगे तो वो पाप नहीं है। हालेलुया। आप किसी बड़ों के पैर ही हाथ लगा देंगे तो वो पाप नहीं है। हालेलुया। रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। हालेलुया। पर जो मुर्दा लोगों की तस्वीरें होती हैं, जो मर चुके होते हैं, उनके सामने सर मत झुकाएं। हालेलुया। क्योंकि जो संसार में प्रभु ने उनको काम दिया था, वो अपने काम को पूरा कर कर चले गए हैं। अब आपका समय है, आप करें प्रभु के लिए। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, खुदा उनके नाम की महिमा हो। हम पवित्र कलाम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं आप चंगे हुए हैं? अपने हाथों को खड़ा करें, आप ताड़ियां मारें ज़ोर से कि खुदावन मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। विश्वास करें कि आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आपको वचन पे विश्वास करना है, आपको प्रभु पे विश्वास करना है। जो शैतान आपके अंदर विचार ला रहा है, उस पर विश्वास नहीं करना है। उसको कहें मेरा खुदा यीशु मसीह मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, और पवित्र शास्त्र कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। हालेलुया। और आप चंगे हैं, आप ब्लेसड हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो जन्म हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। क्या खुदा के वचन के द्वारा हुआ है या अभिलाषाओं के अंदर हुआ है? अगर आपका जो बैप्टिज़्म है वो अभिलाषाओं के अंदर हुआ है या किसी के पीछे लगकर हुआ है, तो आज आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है दोबारा। हालेलुया। अगर आपने किसी के पीछे लगकर बैप्टिज़्म लिया है, अगर आपने जो बैप्टिज़्म खुदा के लिए लिया है, तो वो खुदा आपका खुदा है, वो हर एक बात आपकी मानेगा। अगर नहीं तो वो जो आपने बीच में पाप रख दिया, किसी के द्वारा किसी के पीछे लगकर आपने प्रभु को ग्रहण किया, तो वो चीज़ आपको रोके रहेगी, आपकी आशीषों को रोके रहेगी। हालेलुया। इसलिए सच्चा खुदा और सच्चा वचन है, और पवित्र वचन पवित्र लोगों को खुदा ने दिया है, उसका मुकाशवा लोगों को दिया है। आमीन। और वो खुदावन ने हमें कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगा किया है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, आपको इस पवित्र कलाम पर विश्वास करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करेंगे तभी आप उसके कलाम पर विश्वास कर सकते हैं, तभी उसके भेजे हुए भविष्यवक्ता पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि नबी ने कहा अगर आपके अंदर एक चंगाई पाने का विश्वास नहीं है, शारीरिक चंगाई पाने का विश्वास नहीं है, तो रैप्चर जो है पूरी देह का बदलना है, इसके लिए बहुत बहुत विश्वास चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, आज से आप दीन बन जाएं। आज से अपने आप को खुदा की हजूरी में खड़ा कर दें, सहना चालू कर दें। हालेलुया। आप सहना चालू कर दें। आज चाहे आपके विरोध में बोला जा रहा है, आप सहना चालू कर दें। प्रभु, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए हुआ है कि आप मुझे आशीषित करने जा रहे हैं, मैं आपके और करीब आ रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब तक खुदा आपको आशीषों से भरेगा नहीं, आमीन, जब तक आप पर परीक्षा ना लाए, आपको परखे ना वो, आपको जांचे ना वो, क्योंकि इससे पहले वो आपको आशीष से भरे, इससे पहले वो आपको वरदानों से भरे, वो आपको परखेगा। उसने अब्राहम को कई साल परखा। हालेलुया। कई साल तक परीक्षा करता रहा। हालेलुया। उसने चेलों को परखा,
उसने कहा तुम ऊपरी कोठरी पर बैठे रहना। आमीन। और वो बैठे रहे, चिंता नहीं की उन्होंने अविश्वास नहीं किया होगा कि नहीं होगा, वो बैठे रहे। पर एक दिन वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। मेरे प्रियो बहनों भाइयों, हमेशा आप जब भी दुआ करते हैं टाट बिछा कर दुआ करें। आमीन। ज़मीन पर बैठकर दुआ करें, बेडों पर बैठकर दुआ ना करें। आमीन। खुदा का आदर करें। जब भी आप उपवास करते हैं, दुनिया से अलग हो जाएं, दुनिया के लोगों से अलग हो जाएं, लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाएं। आमीन। उतना बोलें जितना कि आपको ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं तो आप बेडों वगैरह पर मत बैठें, आप टाट पर बैठें। हालेलुया। आप नीचे बैठें, फर्श पर बैठें। पूरा दिन जब आपकी फास्टिंग है, आप फर्श पर बैठें नीचे और आप खुदा का कलाम पढ़ें, प्रार्थना करें। आमीन। अगर आप अपनी जॉब पर हैं तो आप वहाँ पर उतने ही शब्द बोलें जितने की वहाँ पे ज़रूरत है। फालतू आप मत बोलें, फालतू बातें मत करें, फालतू हंसना मत करें। हालेलुया। उतना ही बोलें जितना कि आपको ज़रूरत है। और हर एक नेगेटिव इम्प्रेशन को, जो हमारा इम्प्रेशन लोगों पर नेगेटिव, एक दुष्ट आत्मा को आपके ऊपर ला सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर सेंसर है, खुदा का भी और दुष्ट आत्मा का भी। आप सिग्नल भेजेंगे, जो उस दुष्ट आत्मा का, जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो सिग्नल पकड़ेगी। आमीन। इसलिए आप डिसाइड करें कि आप कौन सा अभिषेक लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का या दुष्ट आत्मा का। हालेलुया। जब भी आप उपवास करें तो बाइबल कहती है कि आम लोगों के समान उदास मत हो कि मैंने उपवास रखा है। लोगों को मत कहें मैंने उपवास रखा है। हालेलुया। उदासी ना छाई रहे चेहरे पर, मैंने उपवास रखा है, मैं तो बड़ा उदास हो गया हूँ, उदास हो गई हूँ। आमीन। खुश रहें। और बाइबल कहती है अपने सिर पर तेल मल। और ये तेल कोई आम तेल नहीं मलने के लिए कहा। आमीन। ये अनॉइंटेड तेल है, ये अभिषिक्त तेल है। तेल मंगाएंगे और नाइट प्रेयर में उसके लिए प्रार्थना होगी। तेल के ऊपर, पानी के ऊपर करते हैं, उस तेल को अपने सर पर लगाएंगे। हालेलुया। और जब भी कोई रोगी होता है तो उस रोगी के ऊपर वो तेल लगाकर दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। क्योंकि आज फास्टिंग का जो दिन खुदा ने हमें दिया है, इसमें हम अपनी आशीषें पा सकते हैं। हमने जो पीछे गवा दिया है वो उसे हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। अपने जीवनों को जांचिए कि आपने क्या खो दिया है। और बाइबल कहती है सचेत कर, तू कहाँ से गिरा था। और नबी ने कहा जहाँ पे आप गिरे थे वहीं से आप खड़े होंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा। वहीं से जहाँ से आप गिरे थे वहीं से आप उठिए, और वही आशीषें, वही खुदा आपके साथ होगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि जो मेरे साथ पवित्र आत्मा ने काम किया था, कई लोगों को शिफा दी थी, रसोलियाँ गायब हुई थी, कई लोगों के सिर दर्द गए थे। आमीन। और हम दुआ पे देखते हैं भाई राजवीर। हालेलुया। और हमारे सभी बहन भाई, काफ़ी भाई और बहनें चंगी हुई। मैं रानी के लिए दुआ की थी, उनकी शुगर कंट्रोल हो गई थी। आमीन। पर देखिए खुदा हमें शिफा देता है। जो दुष्ट आत्माओं के लक्षण होते हैं उनसे हम शिफा पाते हैं। कई बार हमारी शारीरिक कमजोरियां होती हैं, है ना, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो मेरे बहनों भाइयों, हम इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि खुदा इन चीज़ों से हमें शिफा दे। हालेलुया। वो आपकी यहाँ पे भी रक्षा करेगा और आने वाले समय में वो हमें एक घर दे रहा है। वो कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। आमीन। हम उस घर के अभिलाषी हैं। हालेलुया। हम उस घर के अभिलाषी हैं, हम इस घर के अभिलाषी नहीं हैं। खुदा के नाम की महिमा हो, तारीफ हो, क्योंकि वो महान है। आमीन। अपने जब भी आप चलते फिरते हैं
आमीन। आप हमेशा अपने मन में दोहराएं इन चीज़ों को, खुदा के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। दिन रात दोहराएं इसको, वो चंगाई आपकी है, आपको मिल जाएगी वो। हालेलुया। पागल हो जाएं, रात दिन दुआ करें, एक बच्चों के मानो ट्रीट करें खुदा के साथ कि खुदा मुझे ये चंगाई चाहिए, तूने मुझे दे दी है। रात दिन दुआ करें। दाऊद कहता है मैं अपने बिछौने भिगोता हूँ आंसुओं से। आमीन। आंसुओं से बिछौनों को भिगोएं, प्रार्थना करें, उसे याद करें, वो उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसने अपना कतरा कतरा बहा दिया। क्रॉस पर वो पानी मांग रहा था, मैं प्यासा हूँ, उसको शिरका दे दिया गया। अगर आपका दुख उसका दुख है तो वो दुख भी आपका है, आपको अपने जहन में महसूस करना होगा और खुदा आपको चंगा करेगा। आमीन। क्योंकि आज बड़ी प्रचलित बातें हैं कि इस संस्थाओं में शैतान चंगाई देता है। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि चंगाई जो है खुदा से आती है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका राज्य ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान चंगा नहीं कर सकता। शैतान उस वरदान को इस्तेमाल कर सकता है चंगाई के, पर चंगा नहीं कर सकता। हालेलुया। आज हमारे पास खुदा का कलाम है, वचन है, सब आशीषें हमारी हैं। ईमान, सब वरदान हमारे हैं। तो आज हमारे पास वरदान क्यों नहीं, संस्थाओं के पास वरदान है? क्योंकि हमने कभी भी उद्गार नहीं दिखाए खुदा के लिए। हमने सिर्फ एक स्टेट इंसान बनकर रहे खुदा के आगे, हम कभी झुके नहीं। ईमान, हमने कभी जिद नहीं की खुदा के आगे चंगाई का वरदान लेने के लिए, देने के लिए। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे, आपको वरदानों से भरे। जितने ही हमारे बहन भाई हैं, खुदा सभी को आशीषित करे, क्योंकि उस खुदा ने आपके लिए अपनी प्राण दिए हैं, उस खुदा ने अपनी जान दी है, अपना लहू देकर आपको मोल खरीदा है और आपको पुत्र अधिकार दिया है। हालेलुया। और वचन कहता है आपस में प्रेम रखें, चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम बाहर हैं। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा आपसे प्यार करता है, उसका प्रेम आपके अंदर प्रकट होना चाहिए लोगों के लिए। वो कितना भला खुदा है कि आप इंसान के सामने अपना प्रेम दिखाएंगे तो वो इंसान इन चीज़ों को दोहराएगा, वो आप पर हंसेगा, वो आपको माफ़ नहीं करेगा, आजीवन आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आप किसी इंसान को अपने गुनाह बताएंगे, वो आजीवन तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आमीन। जो आपके व्यक्तिगत जीवन के पाप हैं वो आप खुदावंद यीशु मसीह को बताएं, आप किसी पास्टर को मत बताएं। आमीन। जो आप चर्च के विरुद्ध पाप करते हैं उसमें पास्टर इन्वॉल्व हो सकता है, पर जो आपने व्यक्तिगत अपने जीवन में पाप किए हैं, अपने घर के अंदर पाप किए हैं, उसमें पास्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसमें खुदा के आगे आपको घुटने टेकने होंगे, अपने गुनाहों को मानना होगा। खुदाबंद, मैंने ये पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमेशा याद रखना कि अगर आपने पाप किया है तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि मैंने पाप किया है, और तेरा सामर्थी वचन है जो मुझे छुड़ा सकता है। उपवास रखिए, उसके बाद दुआ करिए, तो खुदा आपको छुटकारा देगा उन चीज़ों से। हर एक दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा देगा, हर एक गंदी स्पिरिट से आपको छुटकारा देगा, हर एक बुरे सपनों से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। हर एक बीपी शुगर की बीमारी से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कहिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। अगर आपका माइंड संतुलन होगा,
अगर आपके अंदर शारीरिक चंगाई होगी, शारीरिक शांति होगी, तभी आप आत्मिक शांति को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आप उपवास रखें, आप प्रार्थना करें लोगों के लिए। अगर आप चंगाई चाहते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, खुदावन वो मेरा भाई मेरी बहन चंगी हो। हालेलुया। आप अपने सेवक से प्रार्थना कराएं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको विश्वास करना है, क्योंकि वो करने में सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आपके लिए उसने कोड़े खाए हैं, उसको 39 कोड़े पड़े हैं। आमीन। और वो हर कोड़े पे आपका चेहरा उसको नज़र आ रहा था। जब भी वो कोड़े खा रहा था, हर चेहरा आपका सभी का चेहरा उसके चेहरे के सामने था। वो आपके लिए कोड़े खा रहा था, ताकि आप छुड़ाए जाएं, आप आज़ाद किए जाएं। पर दुष्ट आपको बांधता है पाप के द्वारा। आमीन। ऐसे वो आपका नुकसान नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो आपका नुकसान करे, वो आपको बुराई में फंसाएगा, हर एक बुरी चीज़ में आपको उसके अंदर रखेगा, ताकि आप इसमें फंसे रहें और खुदा से दूर रहें। फ़ोन पीछे रख फ़ोन। हालेलुया। हर एक बुराई में आप फंसे रहें, इसलिए अपने आप को नम्र करें। हालेलुया। हर एक बुरी आदतों से दूर रहें। जो भी खुदा की सेवा होती है, उसमें भी आप समझदारी से काम करें। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो, तारीफ हो। हमारे भाई आशीष को भी खुदा बरकत दे। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और हमेशा साथ खड़े होते हैं। खुदावन सभी को आशीष दे। आइए हम इसके बाद प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो, तारीफ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी हमारे बहन भाइयों ने ऑनलाइन रिक्वेस्ट की है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर मनीषा है नेपाल से, हम उनके लिए दुआ करेंगे। महासामर्थी खुदावंद यीशु मसीह, जबकि बहन मनीषा ने खुदावंद प्रेयर की रिक्वेस्ट की है खुदावंद, और प्रभु उन बच्चे, उस बहन के बच्चे के लिए, जबकि उसके एग्ज़ाम है प्रभु, और खुदावन उस बच्चे की सहायता करें खुदावन, अच्छे मार्क्स से पास कराएं मेरे खुदावन। प्रभु दया करें खुदावंद, और उस बच्चे की सहायता करें खुदावन, उस परिवार की सहायता करें, मदद करें प्रभु, ताकि वो बच्चा और वो परिवार आपके मैसे में आगे बढ़ सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावन हम भाई आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि उनकी रिक्वेस्ट है प्रभु उनको और भी आगे बढ़ाए और आत्मा से भर के इस्तेमाल करे। हम भाई अशोक पठान के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जबकि उन्होंने कहा कि उनकी जॉब छूटने पर है, स्कूल ट्रांसफ़र हो गया है जलालाबाद, और प्रभु उस बच्चे पर अपनी बड़ी दया का हाथ रखें खुदाबंद, उसे जॉब दें खुदाबंद, जॉब से ब्लेस करें खुदाबंद, और तेरे एंजल उस बच्चे की मदद करें प्रभु यीशु मसीह। इन बच्चों के पास तेरे एंजल जो हैं खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह। बहन रूथ के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, जबकि उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की है प्रभु, उस बच्ची के लिए खुदाबंद दुआ करते हैं खुदाबंद। उस बच्ची की बेटी के एग्ज़ाम हैं खुदाबंद, उस बच्ची पर दया करना प्रभु, उसके एग्ज़ाम अच्छे हों खुदाबंद, अच्छे नंबर से पास हो, और प्रभु तेरे नाम की महिमा तारीफ़ कर सके खुदाबंद। और खुदाबंद तेरे नाम की महिमा तारीफ़ हो खुदावन। और जितने भी भाई खुदावन हमारे हैं, और एक भाई जो भी ऑनलाइन जिन्होंने रिक्वेस्टें भेजी थी खुदावन, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन बच्चों को खुदावन आशीषित करें, ब्लेस करें खुदावन, अपने आत्मा से भरें खुदावन, तमाम दुष्ट की चालों से बचा कर रखें, हर एक शैतानी शक्तियों से बचा कर रखें खुदावंद। अपने आत्मा और सामर्थ अपने पवित्र दूतों की अगुवाई करें खुदावंद। और प्रभु जी भाई अंग्रेज के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उस बच्चे पर अपनी दया करना, अपना दया वाला हाथ रखना पिता। और प्रभु भाई संजय के लिए दुआ करते हैं खुदावन, उस बच्चे पर अपने दया वाला हाथ रखना। भाई गुरप्रीत के लिए दुआ करते हैं खुदावन, उनकी आंखों को खोलें खुदावन, ताकि वो तेरे मैसे को जान सकें प्रभु, तेरी महिमा कर सकें खुदावन। और चर्च के सभी बहन भाई दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस बच्चे के घराने के खुदावन, और खुदावन उस परिवार को खुदावन, उस
भाई की पत्नी को खुदावन और भाई के बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। खुदावन अपने दया वाला हाथ से बच्चों पर रखना प्रभु, और भाई के पोतों पर खुदाबंद उन बच्चों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। भाई आशीष को खुदावन, भाई डेविड को, प्रभु यीशु मसीह जो भी डॉक्टरों ने कहा था उनकी ग्रोथ के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरा लहू उसकी ग्रोथ को करे मेरे खुदाबंद, सही नॉर्मल खुदावन उसकी ग्रोथ हो प्रभु यीशु मसीह। दया करें प्रभु जी, इस बच्ची पर दया करें खुदाबंद मेरे खुदाबंद, इस पूरे घराने पर दया करें मेरे खुदाबंद। भाई भाई मलकीत खुदावंद उस बच्चे के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, उसी उसकी पत्नी और उसके बच्ची के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तेरा आत्मा उस बच्ची को छुए मेरे खुदावंद, और उसके तमाम रोग बीमारियाँ उस घर को छोड़ के चले जाएं, हर एक बंधन शैतान के टूट जाएं खुदावंद। जब भी तेरे बच्चे खुदावंद जहाँ भी पाए जाते हैं खुदावंद, तेरा आत्मा दूर और नज़दीक का खुदा है, आप उस घराने को छुएं, तमाम टाइफाइड की दुष्ट आत्मा दूर दफ़ा हों। यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। हम दुआ करते हैं खुदाबंद भाई पतरस के लिए, इस पूरी परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु, तेरी बड़ी दया उन बच्चों पर हो खुदाबंद, तेरा रहम, तेरा जलाली हाथ उन बच्चों पर हो खुदाबंद। तमाम खता गलतियों को माफ़ करना प्रभु अपने बच्चों के लिए खुदाबंद, तेरी महिमा तारीफ़ में आगे बढ़ते जाएं खुदाबंद, आत्मा में आगे बढ़ते जाएं खुदाबंद। भाई यूनुस के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, उन बच्चों को बेहद बरकत दें प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने तेरी सेवा में खुदाबंद एक कर्नोलियस का घराना बनकर उभरा है मेरे खुदाबंद। और खुदावन उन बच्चों को बहुत आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन भाई की पत्नी को और भी ब्लेस करें खुदावन, ताकि वो तेरी महिमा के लिए और भी अच्छे गीत गा सके खुदावन, भेंटों को चढ़ा सके खुदावंद। और खुदावन भाई को उसकी सेवकाई में बेहद बरकत देना प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावंद बहन रूथ के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, जो भी बहन के अंदर मिर्गी के खुदावंद जो दौरे पड़े थे मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद तेरा जलाली हाथ उस बच्ची को छुए खुदावंद, हर एक दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूँ उसको छोड़ कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। इस बच्ची पर यीशु का अधिकार हो जाए खुदावंद, मैं उस बच्ची की देह का अधिकार लेता हूँ खुदावंद, और हर एक दुष्ट की चाल उसके छोड़ कर चली जाए खुदावंद यीशु मसीह। मेरे खुदावंद मेरे प्रभु यीशु मसीह, और जितने भी बच्चे हैं खुदावंद तेरे बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। मैं खुदावंद भाई आशीष के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो खुदा का कलाम एक दुल्हन के रूप में प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और होने पाए कि खुदावन तेरा कलाम हर कान तक जाए प्रभु यीशु मसीह, तेरे गवाह हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। और खुदावंद भाई अशोक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भी मैसेज प्रिंट करते हैं प्रभु खुदावंद, और खुदावन वो तेरी सेवा में और भी अपने आप को समर्पित कर सकें खुदावन, रहम करना प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा पास्टर साइमन जी के लिए प्रभु यीशु मसीह, खुदावन आपने उन बच्चों को इस्तेमाल किया खुदावन, और भी भरपूरी से इस्तेमाल करें खुदावन, वो तेरे बच्चे गवाह बन सकें खुदावन। मैं भाई जॉर्ज के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो मखूस हैं खुदावन, उस फैमिली को उन बच्चों को बरकत देना, और भाई जॉर्ज को खुदावन जो कि मेरे खुदावन अल्फू के से हैं खुदावन, उन बच्चों पर बड़ी दया करना प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन अपने आत्मा सामर्थ से भरना मेरे खुदावन। मैं उदयकरण के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, भाई नीटू के लिए खुदावन उन बच्चों पर अपनी बड़ी दया करना मेरे पिता, तमाम खुदा गलतियों के माफ़ करना खुदावन, तेरे बच्चे हैं प्रभु, गलती हो जाती है खुदावन, अपने बच्चों को माफ़ करना प्रभु। मेरे प्रभु भाई राजवीर के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, मेरे खुदावंद भाई राजवीर के पूरे घराने को खुदावंद, बच्चों से और छोटों को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। तो यीशु मसीह हर एक दुष्ट की चालों घर से दूर दफ़ा की जाए खुदावंद, उनकी देह और आत्मा को पूरे संसार पूरी देह पूरे घर को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावंद। भाई नीटू के लिए दुआ करता हूँ जो कि यूपी से हैं खुदावंद, आप उन भाई पर बड़ी दया करें प्रभु यीशु मसीह। उनकी पत्नी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उनकी पत्नी पे खुदावन जो शैतान के दुष्ट के मेरे खुदावन दुष्ट की चाल है जो उस घर में काम कर रही है खुदावन, वो तेरे सातों एंजल जाएं खुदावन, उस दुष्ट के बंधन तोड़ दें खुदावन, क्योंकि मोरों के खुलने के द्वारा खुदावन हमने दुष्ट पर जय पाई है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन तेरे एंजल उस घर में जाएं खुदावन, प्रभु यीशु मसीह इस बच्ची को शिफा दें, आज़ाद करें खुदावन हर एक दुष्ट के बंधन से प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन उनके बच्चों को बेहद बरकत दें मेरे पिता, मेरे खुदावन तू सामर्थी है, तू जलाली है मेरे खुदावन। भाई सुख खुदावन उस भाई को आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उसकी माता को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु, उसके पिता को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। उनके पिता की जो ड्रिंक की आदत है वो छूट जाए प्रभु यीशु मसीह, तेरे दया वाला हाथ उस बच्चे पर हो। और उनकी माता की खुदावन जो
परेशानी है, पैर की परेशानी है प्रभु यीशु मसीह, आप होने पाए उस बच्चे को छू कर चंगा करें पिता। वो मेरे खुदावंद तेरी बच्ची तेरी महिमा तारीफ़ कर सके मेरे खुदावंद, रहम करें प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया आपकी तारीफ़ हो खुदावंद। मेरे खुदावंद मैं अपने आप को अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में लेता हूँ मेरे खुदावंद। हर एक दुष्ट की चाल इस घर से दूर दफ़ा हो खुदा। मैं इस चर्च को और अपने घराने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। और ये छोटा बैतलम खुदावन, इसके द्वारा खुदावन दूर दूर तक तेरे वचन की महिमा हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावन। और खुदावन जितने ही भाई हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावन। और भाई विक्रम पठानकोट में उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उन बच्चों पर भी बड़ी दया करना खुदावंद। उसके चर्च को, भाई के चर्च को संभालना मेरे पिता। और खुदावंद हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों को दूर दफ़ा करना खुदावंद। और खुदावंद भाई रोहित के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उस पर बड़ा दया बड़ा हाथ रखना पिता। आपके नाम की महिमा तारीफ़ करते हैं। हम दुआ करते हैं भाई आशीष और भाई नबी के लिए खुदावंद। प्रभु उन बच्चों की पढ़ाई में एग्ज़ाम में मदद करना प्रभु यीशु मसीह, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर देना पिता मेरे प्रभु। इस घराने के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपने मम्मी और पिता के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। आप उनके वचन मन को खोलें और खुदावन संदेश में उनका जीवन हो प्रभु। मैं एक ही दुआ करता हूँ मेरे पिता, उनका जीवन बच जाए मेरे पिता। मैं दुआ करता हूँ मेरे प्रभु, तेरे वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा पिता। मेरे द्वारा मेरा घराना बचाया जाए मेरे प्रभु मेरे खुदावंद। और होने पाए कि जब भी तेरे बच्चे वचन प्रचार करने जाएं, तेरा पवित्र आत्मा, तेरे एंजल, तेरे दूत तेरे बच्चों के साथ हों खुदावंद। तमाम दुष्ट के चालें, अंधकार, हथकंडे दूर दफ़ा कर दिए जाएं प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा बच्चों की अगुवाई करे और तेरे प्रेम में, तेरे आत्मा में बने रहें। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस प्रार्थना को तेरे पवित्र सामर्थी नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना में मैं विश्वास करता हूँ आप चेक करें कि आप चंगे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमेशा प्रार्थना करें कि है प्रभु मेरी ऐसी आंखें हो जो लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखे, ऐसा दिल हो जो हर किसी को माफ कर दे, ऐसा दिमाग हो जो हर बुराई को भूल जाए। न मैं शर्मा